Hello friends, welcome once again. Now in this video again I want to tell you that today evening at 8:30 p.m. we'll have this free gap analysis workshop. Those who are interested, you have to register for that at 827-557-77650. Send me a WhatsApp message and there's a condition which I will explain you in the end, and also I've also already told you in the previous video also, that is yesterday's video, so I'll explain at the end of this video. Now also, that is from today, this SML and AFOSOP composite batch is starting. The SML batch will start at 11 o'clock in the morning and the AFOSOP class at 8:30 in the evening. So those of you interested, kindly register. The registration is still on. And AFOSOP anyway you can join till Tuesday, because we'll have a gap analysis workshop. So that workshop remains common for privilege batch as well as for gap analysis students who come for that. So to register, 827-557-77650 is the number on which you to contact me. Kindly share it with your friends. Now in this video, I'm going to cover a comment, and this comment is from a candidate. His name is Arun Rao. This comment was on the video Beware of Experts. So Arun Rao says, sir, today's youth is so desperate to be successful that we are ready to do anything for that, but not in the right way. We look for shortcuts. We are not willing to work on ourselves, and the methods you teach us are long and not easy. So that's another reason why students are approaching those which are serving only their own benefits. A person with a good character can never be selfish. He must be the one who not only looks for his well-being but also for others. And the organization in which we are trying to go into does not require selfish persons. By following these institutes, we are only cheating ourselves but our nation also, and there is no requirement for cheaters in the armed forces. So Arun Rao, क्या बोलूँ मैं, good that you are realizing, and it will be more good if we realize as adult and people who are involved in training with our military background, and the kind of image that we are projecting to all of you through our various mediums. You're true, because you don't want to work hard, you are looking for shortcut, we are giving you. So you are also to be blamed as much as we are to be blamed. The moment you demand what you are legitimately supposed to be getting it from us, we will change our approach. So it is a demand supply thing. You are demanding it, you are getting it. You stop looking for shortcut, we will stop giving you shortcuts. So पूरा blame हम पे भी मत डालो. हम कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन तुम भी तो वो ढूंढ रहे हो. So अब क्यों बुरा लग रहा है? So it's a give and take. You want it, we are giving you. We want money, you're giving me. You demand what is required, and if there is a gap in us, in our ability to train you, we'll have to upgrade or we perish. Either we perform or we perish. But you are the person who has to demand that. So Arun Rao, your point is right. So I will request you, stop looking for shortcut, because as long as you look for shortcut, we will keep giving you this. You will get shit, and you will continue to get shit as long as you demand shit from us. So we are very happy selling shit to you, because you want shit. You want shortcut. I call it shit, malmudra. And you will continue to get this shit as long as you don't change your approach to क्या बोलते हैं, achieve your goal. Shortcut to success देखोगे, यही मिलेगा हमसे. So अपने अप्रोच को चेंज करो, और पूरा हमारी गलती नहीं है, बिकॉज तुम वो सोच रहे हो इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं. नाउ आई गॉट अ व्हाट्सएप मैसेज, अरुण, एक लड़के का था. ही राइट्स, सर आई एम कृष्णकांत शर्मा फ्रॉम आगरा. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CDSE and I've gone for SSB 5 times, 2 times screen route and 3 times conference route. I have taken twice training from Delhi and once from Chandigarh. After watching some of your recent video, I now realize that I wasted money. I got entangled in TAT, W8, etc., but not worked on myself. I knew I was acting, but I did because I was told. Sir, I saw your PDF, and sir, the fees detail. It will be difficult for me to ask for money from my father once again, but sir, can you guarantee recommendation? Then I shall
then I'd like to join your SML and AFOSOP composite online batch from 3rd August 2020. Reply soon. Now what can I reply? मैं क्या बोलता हूँ? He is asking for guarantee. कैसे मैं बोल दूंगा? There are people who give but I don't. तो मैंने क्या बोलूँ? तो मैंने ये जवाब दिया, Dear Krishnakant, I cannot give you any assurance of your recommendation through SSB. Through का spelling गलत लिख दिया. That is anyway not in my control. However, I assure you 500% clarity through the SSB requirement and through SML program. पता नहीं कुछ मैंने ही गलती कर दिया ग्रामर में. Through the SML program, I can help you identify the gaps / deficient in various domains of life and also give you very powerful and effective tools to bridge those gaps. But the precondition is that you must demonstrate adequate willpower / determination to implement what you learn. Without that, it will be all raw knowledge. And I told you there's the video, gaining knowledge versus implementing knowledge. तो मैंने कृष्णकांत को, भैया मैं तो नहीं कर सकता, मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ? तो मैं हाँ क्लैरिटी इस कदर दे सकता हूँ और वो टूल्स भी दे सकता हूँ, लेकिन उन टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको विल पावर चाहिए, वो मैं नहीं दे सकता. अगर है आपके अंदर, डू यू हैव इट इन यू, आप कर लोगे. तो नॉलेज, स्किल एंड विल. सो आई कैन गिव यू द नॉलेज कॉम्पोनेंट, आई कैन गिव यू द स्किल कॉम्पोनेंट, बट आई कैन नॉट गिव यू द विल पावर. So I cannot, because anyway I'm not God of SSB, and since I'm not God of SSB, I cannot give you guarantee. मैं clarity दे सकता हूँ. I can give you an absolute clarity, not 100, 500% clarity. Both in the SSB of course because of that program क्या बोलते हैं AFOSB based on SML, and definite I'll make you so good as a person. Because that's my key domain through self-management leadership. But उसके बावजूद I cannot guarantee, because मैं खुदा तो हूँ नहीं यार, खुदा तो हूँ नहीं ना, मैं तो इंसान ही हूँ. और मेरे को आता क्या है, असेसमेंट के टूल आते, TAT WAT सिखाया, DI पैरा कुछ थोड़ा बहुत बाकी कर लिया. तो I can't give you guarantee because I'm not God, I'm not खुदा. So this was my reply. Now the problem is, आप लोगों को समझना चाहिए कि ये कृष्णकांत और वो जो अरुण था, ये सब ये जो चक्कर समझ रहे हो आप लोग को, सब ऑफिसर बनना, आप लोग सब इमोशन में चल रहे हो कि 2 स्टार्स ऑन दी शोल्डर चाहिए. बिल्कुल चाहिए यार, बट 2 स्टार्स ऑन दी शोल्डर आपके इच्छा करने से या आपके सपने देखने से नहीं मिलेगा. देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिलिट्री एप्टीट्यूड इन यू. मिलिट्री एप्टीट्यूड, अगर आपके अंदर वो मिलिट्री एप्टीट्यूड नहीं है तो आप SML कर लो, AFOSP कर लो, कुछ भी कर लो, वो आप नहीं होंगे और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है. आप इंटेलिजेंट हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, फिजिकली फिट हो, सब कुछ है, बट आप में अंदर मिलिट्री एप्टीट्यूड नहीं है, तो कहाँ से होगा? और हो के फ़ायदा क्या? यू विल बिकम ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल. सो दैट इज़ एनीवे नॉट गोइंग टू वर्क. तो आपको समझाने के लिए मैं छोटा सा एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको समझ जाओगे. फॉर एग्जाम्पल मान लो ये SSB है, मान लो ये SSB का SSR है, और ये पूरे कैंडिडेट है ना, एक कौवा है, एक बंदर है, एक पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पेंगुइन है, एक एलिफेंट है, एक फिश है, एक ईल है और एक डॉग है. ये सभी कौन है? SSB कैंडिडेट्स है. और ये सब क्या होना चाहते हैं? 2 स्टार्स ऑन दी शोल्डर रेकमेंड होना चाहते हैं. और ये कौन है? GTO साइक इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो भी है. तो इन्होंने भैया SSB का टेस्ट करा दिया, बोला टू गेट रिकमेंडेड बाय SSB ऑल ऑफ यू हैव टू क्लाइंब द ट्री. सबको इस पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा. आप बताओ कौन कौन चढ़ पाएगा? कौवा तो उड़ जाएगा, फटाक से बैठ जाएगा. बंदर बैठ जाएगा, ये साला मर जाएगा. अब हाथी कितना भी पैशनेट हो, हाथी कितना भी AFOSP कोचिंग कर ले, हाथी बढ़िया हाथी बन जाएगा, लेकिन साला ये SSB क्लियर नहीं होगा. मछली पेड़ पे चढ़ने से पहले बाहर निकालते ही मर जाएगा. काय को पंगा ले रही मछली? सील चढ़ सकता है. कुत्ता कितना भी अच्छा कुत्ता, अरे तुम कुत्ते वाला काम करो ना, कहाँ साला ये बंदर वाला काम कर रहे हो? सो तुम्हारे इच्छा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर वो एप्टीट्यूड चाहिए. उसी तरीके से SSB में भी जब आप जाते हो, दे हैव सर्टेन जॉब रिक्वायरमेंट. तुम्हारे इच्छा करने से कि मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तुम्हारे अंदर वो मिलिट्री एप्टीट्यूड है, वो उसको टेस्ट करेंगे 3 दिन कर्मा वाचा मानसा टूल लगा के. या तो आपके अंदर वो है और आप बिना कोचिंग से रेकमेंड हो जाओगे, और ना हो सकता है आपके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन निखरा नहीं है, या थोड़ा उसको शेप देने की वहाँ पे कोचिंग मदद कर सकता है, प्रोवाइडेड वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करा, ना कि TAT डेवलपमेंट. और कुछ बल कैटेगरी आप नहीं बन सकते. तो इसके लिए मैंने बताया था विंग कमांडर संदीप राज का वीडियो देखना, जो एयरफोर्स अकेडमी के एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे. तो वहाँ पे उन्होंने इसको 3 इडियट के मूवी से कंपेयर करके बताया हुआ. आई पुट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ही इज़ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऑल्सो विद मी. ही कंडक्ट्स पर्सनल इंटरव्यूज एंड दी सेशंस.
तो आप बताओ, इसमें हाथी बनना चाहता, कुत्ता बनना चाहता, मछली, मछली भी आ गया साला, मछली को शर्म नहीं आता साला, कहाँ आ गया तू स्विमिंग में जा, अपनी कैपेबिलिटी पे जा, अपनी काबिलियत पे जाओ। देखो आज अगर अमिताभ बच्चन अगर कोई रट पटा के चले जाते तो अमिताभ बच्चन आज पेड़ पे बैठे होते, क्योंकि रेकमेंड हो गए पूरी ज़िंदगी में, कितना बढ़िया एक्टिंग करते। मिसाइल मैन देखो, मिसाइल बना दिया, वरना पेड़ पे बैठते, क्योंकि पास हो जाते एसएसबी, पेड़ पे चढ़ जाते। तो भैया अपना अपना काम अपने आप को बढ़िया लगता है। बंदर है तो बंदर को अपना काम करने दो, आप अपना करो। सो एप्टीट्यूड चाहिए। तो एप्टीट्यूड क्या है उसको भी मैं बता देता हूँ। अच्छा मैं आपसे पूछ लूँ, देखो इसमें अगर सब आए एसएसबी में, कौन कौन पेड़ पे चढ़ जाएगा? सिमिलरली एवरीबडी हु गोज टू द एसएसबी, ही वांट्स टू क्लाइंब द ट्री बट ही कैन नॉट, because you don't have it in you, not because you're a bad person. You are elephant, you're not made to climb on the ट्री। इन द सेंस आप में अंदर मिलिट्री एप्टीट्यूड चाहिए। तो एप्टीट्यूड का डेफिनेशन अगर छोटा सा बताऊं तो, क्योंकि आपके अंदर मिलिट्री एप्टीट्यूड है या नहीं है उसको आपको समझना पड़ेगा। DIPR के साइट में आई थिंक उन्होंने टेस्ट भी डाल रखा है, एप्टीट्यूड टेस्ट। बट किसको मतलब है? हमको तो बस इच्छा है और हमारे साहब बोलते हैं कि हमारे पास आ जाओ, 5 दिन में ऑफिसर बना देंगे, आप भाग रहे हो मेरे पास। अरे बेवकूफ़ बना रहा हूँ यार मैं। तो एप्टीट्यूड का नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, फौजी एप्टीट्यूड के बारे में बाद में देखेंगे। एन एप्टीट्यूड इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब ये आपके अंदर का एक कॉम्पिटेंस है, बाद में इसकी बात करेंगे। कॉम्पिटेंस टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क to a certain level. Now there is a certain level to which SSB expect you to perform. You may be performing, but if it is below that, they will not take you. Certain level, that is the present level performance, जिसको चंडीगढ़ में बोला जाता है demonstrated performance। DIPR ने सिखाया, वही 4 वर्ड उसी को हम बोलते रहते हैं, है ना। आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड कैन बी कंसिडर्ड टैलेंट। तो अगर किसी के पास आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड है, इट बिकम्स अ टैलेंट, तो उसका एक हुनर बन जाता है। सो ये तो हो गया एप्टीट्यूड, है ना। एंड एप्टीट्यूड में भी फिजिकल, मेंटल, SSB इज मोर कॉम्प्लेक्स, विल सी। सो एप्टीट्यूड आपका फिजिकल एप्टीट्यूड, जंप मारना, बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, एक रिंग के अंदर से निकल जाते हो, जिम्नास्टिक कर लेते हो। मेंटल, आप मेंटली कैलकुलेट, शकुंतला देवी टाइप हो, बिल्कुल आइंस्टाइन टाइप हो। इट कैन बी अदर डोमेन्स ऑल्सो, बट यहाँ पे से एक डेफिनेशन मैंने नेट से निकाला है। Aptitude is inborn potential to certain kinds of work, whether developed or underdeveloped. अब कुछ एप्टीट्यूड इनबॉर्न है, मतलब वो आपके अंदर है, प्री वायर्ड है। इट मे बी डेवलप्ड, इट मे नॉट बी डेवलप्ड। तो वहाँ पे मेंटरिंग आ जाता है। बढ़िया कोच के पास जाओगे और उसको पोटेंशियल को निखारना आता है, तो कबीर खान की तरह वो निखार देगा, क्योंकि कबीर खान के पास वो था गुण, चक दे इंडिया। तो उसने कैसे गंद बंदरों की टीम को एकदम बस चक दे इंडिया टीम बना दिया। बट हुनर चाहिए। तो अगर कोचिंग में भी हुनर है और आपके अंदर वो पोटेंशियल हिडन है, उसको निकाल लेगा। हम तो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, लूले लंगड़े को बोलते कोर क्वालिटी हाइड कर दो। कोर क्वालिटी में अगर कोई डेफिशिएंसी हो, आप मुझे बताओ कि अगर एक लड़के में कोर क्वालिटी में वीकनेस है, क्या उसे ऑफिसर बनना चाहता है? इवन इफ ही वांट्स टू, ही शुड नॉट यार। नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेलने वाला। तो ऐसे तो तुम्हारे मेंटर्स बन गए हम लोग, फ्रॉड मेंटर्स। सो अगर वो डेवलप्ड है, यू डोंट हैव टू कम टू कोचिंग, वो अपने आप निकल जाएगा। और अंडर डेवलप्ड है, और है लेकिन अंडर डेवलप है, इट कैन बी पॉलिश्ड। तो हर आदमी ऑफिसर नहीं बन सकता। तो कोर क्वालिटी को छुपाना तो बिल्कुल ही गलत हो गया। द पॉइंट इज कि आप या तो बनने योग्य हो, नहीं हो। और अगर कभी कभी योग्य है, योग्यता है, लेकिन वो योग्यता निखर के बाहर नहीं है, वहाँ पे कोचिंग मदद कर सकता है। लेकिन हाथी को पेड़ पे नहीं चढ़ा सकता कोचिंग वाला। तो हाथी भी जा रहा पैसे लेके, सर ये पैसा पकड़ो पेड़ में चढ़ना। पे पागल हो हाथी साले, हाथी वाला काम करो यार, कुत्ते वाला काम करो साला। मछली चल पड़ा पेड़ पे चढ़ना, पागल है, मर जाएगा। बाढ़ आया तो चढ़ना, अभी क्यों चढ़ रहे सूखे में? बाढ़ आएगा तो पेड़ डूबेगा, तब चढ़ो आराम से पेड़ पे। अभी चढ़ रहा साले सूखे में, मरेगा मच्छी साला। तो दिमाग लगाओ यार। नो, मिलिट्री एप्टीट्यूड में देखो, मिलिट्री एप्टीट्यूड में आपसे वो 4 स्तर पर मांगता है। They require certain physical aptitude, certain intellectual aptitude, certain emotional aptitude and certain value aptitude, integrity, core quality and all those things. तो आपको देखो हर बंदा ये एनडीए में जाके साला घिस देंगे। एनडीए में ऐसा घिसता है जैसे बंगाली माँ मच्छी को घिसती है, पता है ना? बंगाली माँ, बंगाली में बंगाल के वेस्ट बंगाल की मम्मियाँ मच्छी को घिसती है ऐसे खचाक खचाक करके, पूरा छील देंगे साले को। एनडीए में जाओगे तो, एनडीए में, ओटीएम में, आईएमए में, एसीसी विंग में जाओगे ना, कहाँ से खून निकलेगा पता नहीं चलेगा। दोबारा बता रहा हूँ, कहाँ से खून निकलेगा पता नहीं चलेगा, ऐसा घिसते। नॉट एवरीबडी कैन टेक इट यार। आई शोड यू इन द प्रीवियस वीडियो, 40 कैडेट्स इन फ्रॉम द एनडीए दे लेफ्ट बिकॉज दे कुड नॉट टेक द रिगर। एसएसबी तो क्लियर हो गए थे, फिर क्या हुआ? सो प्लीज़ समझो, नॉट एवरीबडी इज कप ऑफ टी। कभी कभी आप गलत जगह फंस जाओगे। अगर आपके अंदर वो मिलिट्री एप्टीट्यूड नहीं है तो ज़िंदगी के अगले 50-50 साल उम्र के तक इसमें फंस जाओगे। सो वाई डू वांट टू टेक पंगा? अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है तो जाओ ना। आप साला क्या बताऊँ यार,
अगर आपके अंदर करेज, फिजिकल करेज, मॉरल करेज, वो ये कुछ, इट इज़ अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन. उससे भी ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व. व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस सिस्टम इन यू आर नॉट एलिजिबल? कोर क्वालिटी के बाद, वीकनेस के बाद क्यों बनना चाहता हो? हाँ, तुम मुझे पैसा देना चाहते हो, मैं ले लूँगा, बट आई कांट गारंटी यू यार. सो अंडरस्टैंड दिस. सो ये जो 15 OLQs है, आपको पता चल रहा है, देखो इसको 4 ग्रुप में डाला है. सो फैक्टर 1, दीज आर योर फैक्टर 1 क्वालिटीज़. फैक्टर 2 इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़. तो आपके 4 फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा. फैक्टर्स मतलब OLQ पे नहीं, खुद पे काम करना पड़ेगा. OLQ की बातें छोड़ दो. OLQ बोले कुछ नहीं होने वाला. ये व्हेन यू डेवलप योर इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, वैल्यू सिस्टम, तब वो ऑटोमेटिकली आएगा. वो एक बाई प्रोडक्ट है. पता नहीं मेरी बात समझ में आ रहा है तो जरूर वीडियो बना के दिखाना. सो यू नीड टू हैव मिलिट्री एप्टीट्यूड. मेनी ऑफ यू डोंट हैव मिलिट्री एप्टीट्यूड. फॉरगेट अबाउट मिलिट्री एप्टीट्यूड. साला एक ग्रोथ एप्टीट्यूड नहीं है यार. यू डोंट हैव दैट ग्रोथ माइंडसेट, पैरेटो प्रिंसिपल वाला. तो आपको ये अप्रोच चेंज करना पड़ेगा. अरुण का वीडियो मुझसे गारंटी मांग रहा. साला 4 बार तो कोचिंग कर लिया तुम, 3 बार, फिर मेरे को बोलता गारंटी. कहाँ से दूंगा? गारंटी देने वाले नहीं कर पाए, मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास कोई गारंटी नहीं है. आई डोंट प्रोड्यूस 2 ऑफिसर्स एवरी डे. एवरी 4th ऑफिसर इज नॉट फ्रॉम AFOSB. इट इज ऑल बड़ी मार्केटिंग यार. तुम लोग साले हमारे झांसे में फंस गए. एक लड़का था, उसका फादर बोलते सर आपका क्लियरेंस रेट कितना है, आपका कोचिंग का क्लियरेंस रेट कितना? मैंने कहा आप कितना सुनना चाहते हो उतना बोल दूंगा. बोले क्या मतलब? अरे आपको कितना सुनना है? नहीं सर मैं जानना चाहता हूँ. मैंने कहा आप कितना सुनना चाहते हो, मैं उतना बोल दूंगा. व्हाट इज दिस यार? मैं अगर बोल दूँ मेरा सिलेक्शन रेट 70% है तो मान लोगे? मेरा हर दिन 12 बंदे रेकमेंड होते तो तुम मान लोगे? तुम तो साले कुछ भी मान लोगे, गांधार हो. नो यार, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. समझना पड़ेगा. देखो भैया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी लोग कैसे गारंटी देते हैं मुझे नहीं पता. आप AFOSB में आओगे तो आपका SSB में 500% क्लैरिटी आएगा. आपके अंदर दम है तो आप वैसे भी निकल जाओगे, क्लैरिटी के बाद तो और बढ़िया निकल जाओगे. लेकिन ये हमारा 10% है. हमारा गेम है 90% SML का, सेल्फ मैनेजमेंट. ये इसके बावजूद इसमें 500% हम ईमानदारी से काम करेंगे और तुम्हारे बहुत फ़ायदा होगा. वीडियो से फ़ायदा हो रहा तो वहाँ नहीं होगा. लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, अब जो बोल रहा हूँ वो सुन लो. AFOSB में आने से अरुण कुमार की तरह बहुत सारे लड़के, उसकी माँ बाप पूछते हैं कि सर गारंटी है? मैंने कहा नो गारंटी. इसलिए नहीं है कि भैया देखो आपको समझना पड़ेगा, आई कैन नॉट गिव यू गारंटी. बाकी देते हो, कैसे देते हो हमसे, उनसे पूछो, बहुत बेहतर है मुझसे. मैं इसलिए गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि आपका रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आपका एफर्ट आपके हाथ में. व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज द एफर्ट, नॉट द रिजल्ट. मेरे कंट्रोल में क्या है? 500% क्लैरिटी, ताकि आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए यात्रा में कितनी लंबी है, क्या ऑब्स्टिकल है. सेकेंडली, वेरियस डोमेन, जो 4 डोमेन बोलता हूँ, PQ, IQ, SQ, EQ में डेफिशिएंसीज कहाँ हैं. वेर एवर पॉसिबल कैन वी मेक अप दोज डेफिशिएंसीज बाई डूइंग लेजिटिमेट थिंग, नॉट बाई डूइंग मास्किंग. एंड अगर नहीं पॉसिबल है तो लेट अस डू इट एज मच एज पॉसिबल. बिकॉज आपको SSB जाने का मन है, आप बिल्कुल जाओ, शान से जाओ. काबिलियत हो तो हो जाओगे, नहीं होगा तो निकल जाओगे. लेकिन लेट अस बी ऑनेस्ट फर्स्ट ना. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई कैन नॉट गारंटी यू लाइक आई टोल्ड अरुण एंड अदर्स. इसका कारण ये है कि एक बात समझ लो, SSB में आप रेकमेंड हो गए और एकेडमी में जाओगे, ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, IMA, देहरादून एंड OTA, तलवार बना रहे हैं यार. वो तलवार बना रहे हैं. और तलवार बनाने का काम किसका है? एकेडमी का. IMA, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी. और तलवार बनाने के लिए रॉ मटेरियल लोहा ही चाहिए, स्टील ही चाहिए. और SSB का काम है इस लोहे की टेस्टिंग करना. तो SSB क्या करता है? इस रॉ मटेरियल की टेस्टिंग. और आप बताओ मुझे, आप थोड़ी देर के लिए सोच के बताओ, इसके अंदर एक कोर क्वालिटी में वीकनेस है तो क्यों वो सर बोलते हैं इसको छुपा दो? लिखित में बुक में लिखा, इधर पड़ा हुआ इनका 200 रुपये का बुक में, बोलते स्प्रिंकल OLQs एंड इफ यू हैव डेफिशिएंसी इन कोर क्वालिटी हाइड इट. मैं उसी सर से बोलता हूँ, वीडियो से बना के बताओ यार, आप क्यों इसको कोर क्वालिटी का वीकनेस के, क्योंकि उससे तलवार खराब बनेगी सर, उससे देश की रक्षा में गड़बड़ होगा. आप क्यों ऐसे उसमें लिखा, मुझे आज तक समझ में नहीं आना. कीप आस्किंग. आप मुझे गाली दे दो, अपना बिजनेस इंटरेस्ट बोल दो, इट डज नॉट मैटर. If you are copper, if you are bronze, if you are silver, if you are aluminum, why should you become तलवार? Because तलवार अगर किसी तरह से गलती से बन भी गए, you will only suffer. You will only suffer. Why you will only suffer? Because you are not cut out for becoming तलवार. मतलब कॉपर, गोल्ड, इससे तलवार बनता है? बिल्कुल नहीं बनता यार. तो फिर काहे को ये तलवार बनाना चाहते हो? इससे आप SSB को बेवकूफ़ बना रहे हैं, SSB के प्रोसीजर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो और SSB के काम को
करप्ट कर रहे हो. देयर जॉब इज इंक्रीजिंग बिकॉज आर रॉन्ग कोचिंग. और फिर वो उससे अच्छे लड़के भी कभी कभी छूट जाएंगे. तलवार चाहिए तो समझ लो रॉ मेटेरियल, कितना भी एसएमएल कर लो, अगर आप लोहे नहीं हो तो गोल्ड हो तो गोल्ड भी बनेगा ना. गोल्ड को मैं कोई भगवान हूँ क्या? ब्रॉन्ज को मैं ये बना सकता हूँ आयन. अगर आप एसएमएल करोगे तो यू विल बिकम ए बेटर सिल्वर, यू विल बिकम ए बेटर कॉपर, बट यू कैनॉट, ए कॉपर कैनॉट बिकम आयन. उसके लिए गणेश बाबू इज नॉट खुदा. डीआईपी ने मुझे सिखाया कि असेसमेंट सिखाया यार, मैं कोई खुदा थोड़ा ना बन गया. डोंट थिंक आई एम खुदा, आई एम नॉट गॉड, आई कैन नॉट गारंटी. तुम्हें ये समझना पड़ेगा. मैं बार बार बोल रहा हूँ रीइंफोर्स, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम तोड़ना है कि कोचिंग वाले गधे को घोड़ा बना सकते हैं. नहीं बना सकते. गधे को घोड़ा नहीं बना सकते. एनीवे एसएसबी घोड़ा नहीं देख रहा, खच्चर ही देख रहा 40%. पता नहीं तुम लोगों को साला समझ में आ रहा. आपको लगता है ये मुखौटा पहनने से गोल्ड लोहा बन जाएगा? मुखौटा पहनने से गोल्ड लोहा बन जाएगा? मुखौटा पहनने से सिल्वर लोहा बन जाएगा? नहीं बनेगा यार. क्योंकि मुखौटा कुछ भी पहन लो यार, जब आखिर में जब आपको एसएसबी में जाना पड़ेगा तो आपको भैया पेड़ चढ़ना पड़ेगा. आप नकाब चाह लो, अगर हाथी बंदर का नकाब पहन ले, हाथी बंदर का नकाब पहन ले तो साला बंदर बन जाएगा क्या? मछली नकाब पहने की साली सांस फूल के मर जाएगी मच्छी. कुत्ते को साले बंदर बना दो. ये कौन सा कोचिंग है यार? भैया आप हाथी हो, आप हाथी हो, आप क्यों बंदर की एक्टिंग कर रहे हो? आप कौवे हो तो कौवे रहो ना, उड़ो साले अच्छे से. आप कुत्ते हो पीछे से और आगे से बंदर कैसे बन सकते हो? पता नहीं मेरी बात समझ में आ रहा है? ये फोटो से मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ रहा तो मुझे बताओ यार. तो भैया मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा नहीं हूँ. सो मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो, मेरे पास आना ही नहीं, मेरे पास तो आना ही नहीं. तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा एक बार अपने अंदर झांको. The key to success lies within you. Don't look outside you, look within. ऐसे कोचिंग में जाओ जो आपको अंदर झांकने में मदद करे, ना कि बाहर नकाब पहना के हाथी का बंदर बना दे. साले साइज देख हाथी का, कुत्ते को बंदर बना दे. कितना बढ़िया कुत्ता था, साला बंदर बन गया, ना घर का ना घाट का कुत्ते को साले. भैया ये डिमांड सप्लाई का गेम है. जब तक तुम हमसे ये कचरा मांगते रहोगे हम तुम्हें कचरा सप्लाई करेंगे. यू स्टॉप द डिमांड, वी विल हैव टू स्टॉप द सप्लाई. जब आप हमें असली नोट दे रहे हो तो हमसे नकली ट्रेनिंग क्यों ले रहे हो? इफ़ यू एक्सेप्ट शिट यू विल गेट शिट. शिट मतलब पता क्या होता है? पॉटी. यू आर टेकिंग पॉटी. गणेश बाबू को 16,000 रुपये दोगे, गणेश बाबू पॉटी बांध के देगा बढ़िया वाला. ले जाओ साला इसको. व्हाट बड़ी नॉनसेंस है. तुम लोग को बोल बोल के थके. यू हैव टू सिट विद योर पेरेंट्स एंड वॉच माई वीडियोज बिकॉज दे एडल्ट, दे विल अंडरस्टैंड. एंड उनका पैसा तुम्हारा थोड़ा ना, उनका पैसा दर्द तो उन्हें होगा. सो यू हैव टू स्टॉप demanding shortcut to success, because when you demand, that is my energy, that makes me God. So don't look for shortcut. हम तो कोर क्वालिटी वालों को भी ऑफिसर बनाने की गारंटी करते हैं. तो हमारे ऊपर विश्वास मत करो यार, बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो. और इसमें तुम्हारी भी पूरी गलती थी. हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का भी देखो, इसमें टीचर मस्त होकर बैठा हुआ है, यूनिवर्सिटी पैसे लपेट रहा है और स्टूडेंट की लगी हुई है वाट, क्योंकि साला हाथी का बंदर बनाया जाता है यहाँ पे. क्योंकि इधर भी तो यही होता है. फॉर फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज़ टू टेक द सेम एग्जाम. प्लीज़ क्लाइंब द ट्री. आपके अंदर इंजीनियर बनने का एप्टीट्यूड है, डॉक्टर बनने का है, कुछ नहीं. साला पेड़ छोड़ो, पेड़ छोड़ो. एवरीबडी, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं फिर भी चलो, एवरीबडी वांट्स टू बिकम इंजीनियर. नो यार, यू अंडरस्टैंड, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज रोट मेमोरी बेस्ड. इट डज नॉट डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग. बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू चीट यू. वी हैव पुटिंग यू ऑन द सेम रट, चमत्कार पे चमत्कार के ऊपर, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर ट्रेन्ड एंड दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग इट. So I told you what is the difference between psychological test and academic test. Some of you have replied. I want more reply, because once you get that I'll make the next video. मैं क्लैरिटी से तुम्हें परेशान कर दूंगा फ्री में, क्योंकि जब मैं फ्री में क्लैरिटी दूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा क्या करना है. एंड सम ऑफ यू विल कम ऑल्सो. भैया आफ्टर ऑल मैं भी तो वीडियो ही बना रहा हूँ बाकियों की तरह, ट्रिक्स एंड टिप्स तो नहीं बेच रहा ना. बेवकूफ़ मत बनो थोड़ा, है ना. सो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी गंदी है भैया, समझ लो. तो जो 3 अगस्त का कंडीशन मैंने ये बताया था कि बिवेयर ऑफ एक्सपर्ट्स वाले वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट डाला, प्लीज़ सेंड मी ए व्हाट्सअप मैसेज विद द स्क्रीनशॉट. यू विल बी गिवन द पासवर्ड एंड ID, एंड दिस इज द नंबर 8275557765. आई विल शेयर द पासवर्ड एंड ID एंड काइंडली शेयर इट. एंड उसी तरह से 10th अगस्त जो कि नेक्स्ट मंडे है, उसमें भी जो 8:30 को फ्री वर्कशॉप होगा, उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट का जो वीडियो कल डाला था, आई वांट फीडबैक ऑन दैट. दोज पीपल feedback, they will send me the screenshot and I'll share the details. 8275577650, and kindly share it. And those of you want to go through the
composite batch, self-management leadership and AFOSOP, starting from today. Please message me at 82755775650, and the batch will start at 11 o'clock, self-management leadership subah 11 o'clock, and the SSB batches at 8:30. तो होप टू सी यू फॉर बोथ द सेशंस, एंड फीडबैक जरूर लिखना कि अच्छा लगता तो क्या समझ में आया, एंड बिकॉज आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल मेक मोर वीडियोस. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.